लिखो जी। अबाउट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फैक्ट्स अबाउट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन लॉ of gravitation, the force of attraction is a central force. The force of attraction is a central force. The force of attraction is central force. इसका मतलब क्या है? It means that the direction of force lies on a line joining two masses. Direction of force lies on a line joining two masses. ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स लाइज ऑन लाइन joining टू masses. एक m1 है और एक m2 है। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इस लाइन पे लाई करेगी जो इन दोनों लाइनों को जोड़ रही है। ये बेटा पहली लाइन इज सेंट्रल फोर्स। Botrain, Yes, sir. Yes, sir. number 2, the force between two masses do not depend upon the medium between two masses. The force between two masses do not depend on the medium between two masses. दो masses के बीच में क्या है? Air, water, solid, liquid, जो मर्जी हो, the force will remain same. ठीक है? The force between two masses do not depend on the medium between two masses. दो mediums के medium पे, दो masses के बीच के medium पे depend नहीं करता है. Clear? Yes, sir. It do not depend on the medium between two masses. Number 3, the force between two masses do not depend on the presence of one mass. The force between two masses do not depend on the presence of third mass. ठीक है? The force into masses do not depend on the presence of third mass. दो masses के जो बीच का फोर्स है वो तीसरा मास पड़ा हो या ना पड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक m1 है
एक m2 है, एक तीसरा मास m3 है। इन दोनों की जो फोर्स है थर्ड से कोई लेना देना नहीं। रब कर दो दोनों पॉइंट्स, मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है, मासेस पे डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट, न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, हमें पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी बेटे। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो मैं सिर्फ पता क्या लिखूंगा, जी m1 m2 by r square into r कैप। बस वेक्टर फॉर्म में जी m1 m2 by r square into r कैप। ठीक है, अब देख यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला होता था, वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर का मॉड। मेरे पास जाएगा क्या बन जाएगा, जी m1 m2 r square into r वेक्टर अपॉन r वेक्टर का मॉड। चेक करो, इट इज जी m1 m2 r square into r वेक्टर बाय r क्यूब कर दो, चेक करो, ये फोर्स वेक्टर आ रहा है। ये m1 m2 r क्यूब into r square। कहने बेटा जी आगे मैंने आर वेक्टर को, आर कैप को आर वेक्टर बाय आर वेक्टर का मॉड लिख दिया। इट इज आर वेक्टर अपॉन आर, आर स्क्वायर इनटू आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, इसकी ना डेरिवेशन है, मतलब कभी भी नहीं पूछता, इसलिए मैं नहीं करवा रहा। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन ओबे न्यूटन
Third law of motion. Newton law of gravitation obey Newton. Third law of motion. Newton law of gravitation obey Newton. Third law of motion. To every action there is equal and opposite reaction. ठीक है? Action there is equal and opposite reaction. To every there is equal and opposite reaction. इसका मतलब क्या कहता है कि अर्थ ने एप्पल को ट्रैक किया तो एप्पल भी अर्थ को ट्रैक करता है विद द सेम फोर्स. ठीक है? तो लिख लो. नोट डाउन. If the earth attracts the apple towards itself, if the earth attracts the apple towards itself, then the apple also attracts the earth towards each other, towards it. Earth also attracts the apple towards itself. With the same force, with the same force as the force given by the earth to apple. जितनी फोर्स अर्थ एप्पल को देती है उतनी ही फोर्स एप्पल अर्थ को देगा. ठीक है? जितनी फोर्स अर्थ एप्पल को देती है उतनी फोर्स एप्पल अर्थ को देगा. The acceleration produced in the earth is very less, but the acceleration produced in the earth is very less. It is due to the reason. It is due to the reason I repeat, it is due to the reason that the mass of earth is very large. ये आपको समझ में आ गई बात करनी है ये? ये सर आ गई है. अगर मैं इसको ओरली करके लिखूं तो मास 6 into 10⁻24 kg. ये एक मास होती है स्मॉल m 100 kg. तो फोर्स कितनी आ जाएगी? 1000 न्यूटन आ जाएगी बेटे. m into g. तो एक्सेलरेशन इन अर्थ, acceleration in earth, it is 1000 divided by 6 into 10⁻24. So 1/6 into 10⁻21 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अर्थ के अंदर इतनी कम एक्सेलरेशन आई. ठीक है? हमें अर्थ चलती दिखी ही नहीं. बोर्ड क्लीन कर दो बेटा. जब बताओ. यस सर. अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मेरा मास है तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी? 4000 डिवाइडेड बाय मास 100. 2 जीरो घटी, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड का जो मेरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है ना.
Yes, sir. Yes, sir. 6 point. पूरा बोर्ड क्लीन? Yes, sir. Newton law of gravitation. Obey. Superposition principle. Newton law of gravitation obey superposition principle. ठीक है लो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है it helps to calculate the net force on one mass due to the presence of other masses. Calculate net force on one mass due to the presence of other masses. But कहना क्या चाहता है ये M1 है ये M2 ये इसको अपनी तरफ टाइप करें नाम क्या दे दूं M12 ये M3 है ये अपनी तरफ टाइप करें M13 ये M3 है सॉरी M4 ले लेते हैं ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है F14 तो जो नेट फोर्स है वो ऐड हो जाएगी F12 प्लस F13 प्लस F14 F12 प्लस F13 प्लस F14 बट ठीक है बट द फोर्स should be added but the force should be added keeping laws of vector addition in mind. Force should be added keeping laws of vector addition in mind. ठीक है अब सबसे इंपॉर्टेंट यही है कौन सा लॉ यूज करेंगे मोस्टली यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ठीक है चेक करो नोटिंग कर दो Sir, 1 minute. क्वेश्चंस पे आ गया पहला क्वेश्चन पेज नंबर पड़ेगा तुम्हें 10 Sir, done. कल सुबह कितने बजे लगानी क्लास A rocket is fired from the surface of Earth towards the sun.
से सन की तरफ रॉकेट भेज दिया, ठीक है। डिस्टेंस और सर्कल अर्थ एंड नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द रॉकेट इज 0। कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पे फोर्स 0 देगी। अब सुपर प्रेशर किसे लगे, अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और सन अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। एक पॉइंट पे नेट फोर्स 0। ये डिस्टेंस x ले लो, Yes, sir. तो ये डिस्टेंस कितना आ Yes, जाएगा, sir. 1.5 10 to 11 minus x। मास ऑफ अर्थ कितना Yes. दिया, 6 into 10 to 24। मास ऑफ सन 2 into 10 to 30। रॉकेट का मास स्मॉल m ले लो, attraction due to earth must be attraction due to sun, g mass earth into small m by x का स्क्वायर, g mass sun into small m 1.5 into 10 to 11 minus x का स्क्वायर, g और m कटा, mass earth 6 into 10 to 24 by x का स्क्वायर, mass sun 2 into 10 to 30 upon 1.5 into 10 to 11 minus x का होल स्क्वायर। ये करके आ गया 3, ये करके गया 10 to 6। अगर मैं 3 अपॉन x स्क्वायर 10 to 6 1.5 11 minus x का होल स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट 3 by x, it is 10 to 3 1.5 11 minus x। यहाँ से x निकल जाएगी, अब मैं यहाँ पे छोड़ता रहूंगा या आपको कैलकुलेटर से कर लेना कैलकुलेशंस। करें नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, 1 minute. Done, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल से, स्फीयर ऑफ 20 kg is attracted by seconds or mass 50 kg the force equal to 0.01 gram force। अब देख फोर्स कितनी दी है, 0.01 ग्राम फोर्स। याद कर, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 8 न्यूटन, ठीक है। इट इज 1000 ग्राम फोर्स, केजीएफ को 1000 के ग्राम फोर्स हो गया, क्लियर, 1000 क्लियर, इट मींस 1000 ग्राम फोर्स
is 9.8 Newton. 1 gram force 9.8 by 1000 Newton. 1 gram force 9.8 into 10 power 5 by 10 power 3 Newton. सॉरी डाइंस हो जाएगा. तो मेरे पास क्या बना? 1 ग्राम फोर्स इज 980 डाइंस. चेक करो. याद है ना कन्वर्जन? Yes, sir. इस केस में हम क्या करेंगे? 0.01 1 by 1000 kgf कर दो divided by 100 10 to minus 5 kgf 10 to minus 5 into 10 minus 4 Newton. M1 कितना दिए? 20 kg और M2 50 kg. 20 kg और M2 50 kg. तो फोर्स क्या बनी? G M1 M2 है. हाँ ढूंढना है. सॉल्व करके दोगे कर लोगे? G 6.67 minus 11 into M1 20 into 50 by R. हो जाए बेटा जी, बोलो. Yes, Yes, sir. sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. क्या कहता है? अब ये क्वेश्चन दो है. एक ये वाला क्वेश्चन है. Three uniform spheres, each of mass m, are kept in such a way that each touches the other two. ठीक है? Find the magnitude of the gravitational force on any sphere due to the other two. अब एक स्फीयर में बाकी दो स्फीयर्स के कारण फोर्स निकालनी है. करोगे 60 डिग्री बन जाएगा.
Yes, sir. अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का ही न्यूमेरिकल आएंगे, एमसीक्यू भी और वो भी, जितने भी क्वेश्चन आएंगे। तीन मासेस रख दिए। अब करते हैं इंपॉर्टेंट बात, फिर से देख, एफ का फॉर्मूला क्या है, जी m1 m2 का स्क्वायर। अगर मासेस और डिस्टेंस सेम है, अगर मासेस और डिस्टेंस सेम है तो फोर्स सेम आएगी। ये देख, ये फोर्स सेम आएगी, ये m और ये इस पे नेट फोर्स ढूंढ रहा है, ये m। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, Yes, sir. Yes, sir. कितना डिस्टेंस है, 2r। दोनों के डिस्टेंस कितना है, 2r। तो ये फोर्स कितनी 2r. बनी, F इक्वल टू G m इंटू m, 2r का स्क्वायर, F G m स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर, यस और नो। और ये फोर्स भी क्या आ Yes. जाएगी, G m स्क्वायर बाय 4r का स्क्वायर। दोनों में एंगल कितना है, 60। अगर मैं पैरेललोग्राम लगाता हूं तो फोर्स क्या आ जाएगी, √3f, याद है। अगर 90 डिग्री होता है तो √2f, 60 डिग्री होता है √3f। तो मेरे पास डायरेक्ट लिख दो, √3 gm स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। Yes, sir. क्या कहता है, चार मासेस दे दिए, m 2m and 4m, player a b and c, magnitude of resultant pull at a due to another two, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। Yes, sir. दोनों वेक्टर्स Yes, के sir. बीच में डिस्टेंस, सॉरी, दो एंगल्स, एंगल कितना आएगा, 45 डिग्री। फोर्सेस सेम है Yes, या yes, नहीं, sir. m1 क्या देगी, g m इंटू 2m बाय l स्क्वायर, और f2 कितनी आ जाएगी, g m इंटू 4m √2l का स्क्वायर, ये 45 डिग्री। तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी आई, f1 का स्क्वायर f2 का स्क्वायर 2 टाइम्स f1 f2 cos 45। सॉल्विंग खुद करो, मैं नहीं करूंगा, ये कैलकुलेटर से कर सकते हो चाहो तो।
बोलो हो जाएगा। यहाँ पे देख फोर्सेस सेम है, सॉरी फोर्सेस सेम नहीं है, पिक्चर में फोर्स सेम थी तो एफ और एफ लिख दिया था, इधर एफ और एफ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि फोर्सेस सेम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मून पे which is greater, the greater force exerted on the earth by the sun, ठीक है, greater exerted on the earth by sun, अर्थ पे सन के कारण फोर्स F1 दे दूं, अर्थ का मास, सन का मास, डिस्टेंस, ऑन द मून, पे मून के कारण फोर्स F2, ये डिस्टेंस कितना दिया है 1.5 10 पर 11, ये डिस्टेंस कितना दिया है 3.8 10 पर 8, तो दोनों फोर्सेस निकालनी है, रेशियो बता देनी है, हो जाएगा। आई थिंक सो आसान है ये तो। Yes, sir.